Hello everyone, today we will be discussing the chapter Neural Control and Coordination of Biology. So let's start without any wait. First of all, we have to study basically two systems in a human body, that is a neural and an endocrine system. Neural system is all about the nerves associated with the brain and the other nerves associated with the spinal cord. And endocrine system is all about the hormones regulation. So, in the neural system, we will include the neurotransmitters, and in the endocrine system, we will include the hormones. In the neural system, there is a point-to-point communication, whereas in the endocrine system, the communication is mainly through hormones. However, it is a slower system, but its effect is long-lasting as compared to neural, which is quick and faster, but its effect is short-lived. Let's start the neural system. First, we will discuss in the lower invertebrates. In the phylum Coelenterata, Hydra was observed to have first time neuron, and that was a apolar neuron. Then we come to insects like Arthropoda, Annelida. They have a better organization than coelentrates. So in class Insecta is a part of phylum Arthropoda only. So in the phylum Arthropoda there is a class Insecta. They basically have better organization than coelentrates. They have ganglions, which are the fusion of the cell bodies. Then NCERT also write that insects basically have brain, ganglia and neural tissues, three of them combined. And if we come to vertebrates, so phylum Vertebrata, phylum Chordata, they have well organized nervous system. Now, human neural system is made up of neural tissue, which has neuron and neuroglial cells. Neural system has two components, central neural system and peripheral neural system. Central neural system includes the brain and the spinal cord, whereas the peripheral nervous system includes all the nerves associated with the central nervous system. Now if we discuss basically the peripheral nervous system, there are two types, afferent and efferent nerves. Afferent nerves are also known as sensory nerves, and efferent nerves are also known as motor nerves. Efferent nerves are responsible for transmitting the information from the central nervous system to the organs, whereas the afferent or the sensory, as the name suggests, sensory, when we sense something, so our hand basically when sense something, then the information is passed from the peripheral organ to the central nervous system. So it is basically the definition written here. All the nerves associated with the brain and the spinal cord are included in the peripheral nervous system, which are basically the cranial and spinal nerve, which form the peripheral nervous system. Now, if we divide the efferent, yani motor nerves into two components, which was the efferent, which sends the information from the central nervous system to the organs. It is of two types, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system and autonomic nervous system. In the somatic nervous system, the central nervous system will be concerned to transfer the information from the brain to the skeletal muscles only, whereas in the autonomic nervous system, the central nervous system will send the information from the brain to the involuntary parts which we have no control on, and voluntary which we have control on are skeletal muscles. इनवॉलेंट्री पार्ट्स में भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. Sympathetic works in the emergency condition, whereas the parasympathetic nervous system works in the rest condition. And the visceral nervous system is another type of nervous system which includes to and from all the nerves which come to the visceral organs and which come from the visceral organs, both type to and from. Basically this is the. Now next topic is types of neuron. First is unipolar, second is bipolar, and third is multipolar. Unipolar will basically include only one axon and it is basically found in the embryonic life. The bipolar neuron will include one axon and one dendrite, example retina of eye. And multipolar will include one axon and many dendrites.
The main thing to note among all type of neurons is that they all will have one axon only, but number of dendrites can vary. It can vary from 2 to 3 or many dendrites. Multipolar neuron example is cerebral cortex of the human brain. Now there is also one type of neuron called the pseudo unipolar neuron, basically which initially will look like it is a unipolar, but then further it will divide into two branches, making it appear looking like a pseudo unipolar. Basically it will become like a bipolar neuron. So see, this is a one axon and then further divides into dendrite and axon. इसका example dorsal root of ganglion of spinal cord. Now अभी हमने नर्वस सिस्टम देखा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस क्लासिफिकेशन वी ऑलरेडी डन. Now central nervous system may have two type of neuron. First is myelinated and second is unmyelinated. Myelinated neurons basically means that they have a myelin sheath made by the oligodendrocytes. Basically central nervous system के पास जो myelin sheath होता है वो Schwann cell नहीं oligodendrocytes बनाते हैं. And myelinated neurons NCERT लिखती है that the most common in the central nervous system. Here the oligodendrocytes are the type of the cells which form the myelin sheath here. Whereas in the peripheral nervous system there are two type of neurons. First is myelinated and second is unmyelinated. Myelinated neurons in the PNS will have the myelin sheath which is made by the Schwann cells only, which form the myelin sheath, whereas the unmyelinated are the most common in the peripheral nervous system. NCERT also writes that PNS may have neurons, may have Schwann cells which do not make the myelin sheath. तो इसमें कोई बड़ी बात हो ना, Schwann cell का प्रेजेंस होना myelin sheath की फॉर्मेशन को कंफर्म नहीं करता. तो Schwann cell हो भी सकते हैं बट myelin sheath नहीं भी बन सकती, और Schwann cell हो सकता है myelin sheath बन भी सकती है. बट PNS में बेसिकली अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स ज़्यादा कॉमन होंगे. माइलिन का मतलब क्या होता है? माइलिन इज अ लिपिड एनरिच शीथ विच एक्ट एज इंसुलेटर एंड एनी कंडक्शन इज नॉट अलाउड अक्रॉस इट. बेसिकली दिस इज वी शो यहाँ पे ये PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का माइलिनेटेड न्यूरॉन दिखाया हुआ है NCERT में. माइलिनेटेड न्यूरॉन PNS का ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे Schwann सेल दिखा है. जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं वो Schwann सेल है. जो आपको ये दिख रहा है लंबा सा वो एक्सॉन है और ये न्यूक्लियस है, और येलो कलर का माइलिन शीथ है, ग्रीन कलर का न्यूक्लियस है, और जो बीच में स्पेसेस रेड कलर का दिखाया हुआ है वो नोड्स ऑफ रैनवियर है. नोड्स ऑफ रैनवियर वो पॉइंट होता है जहाँ पे माइलिन शीथ की एब्सेंस होती है. और न्यूरोलेमा इज़ नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द Schwann सेल. उसके बाद ये अब आपका पूरा डायग्राम, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी और कुछ नहीं गया इसमें नहीं. अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स. सबसे पहली बात, एक्सो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि क्या होता क्या है वो आप देख लीजिए. एक्सोप्लाज्म के अंदर K+ बहुत सारा है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बहुत सारे हैं. बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ एन ओशन ऑफ Na+ आयंस. बस ये तो याद रखना ही है कि जो ECF जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं उसमें Na+ आयंस बहुत सारे होते हैं और अंदर K+ आयंस और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं. बेसिकली ये चीज़ मेंटेन कैसे होती है सेल के अक्रॉस या फिर मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये मेंटेन कैसे होती है? तो आप देखिए, एक होते हैं हमारे पास लीकी चैनल्स. लीकी चैनल्स का काम होता है लीक करना, तो वो आयंस की लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. एक होंगे K+ लीकी चैनल्स और एक होंगे Na+ लीकी चैनल्स. K+ लीकी चैनल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू Na+ लीकी चैनल्स. और K+ लीकी चैनल्स की डायरेक्शन होगी फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म टू द ECF. और क्योंकि ये डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में K+ आयंस भी मूव करेगा, तो बाहर की तरफ K+ आयंस ज़्यादा जा रहा है और Na+ आयंस इस कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं और उनकी मूवमेंट अंदर की तरफ होती है. चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. मान लो आपके पास 10 K+ लीकी चैनल्स है, तो एक टाइम पर 10 K+ आयंस बाहर गए और आपके पास 2 Na+ लीकी चैनल्स है, उसी विद इन द टाइम में 2 Na+ अंदर है. तो 10 K+ 10 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, उसके बदले में सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है. तो नेट रिजल्ट क्या होगा? अंदर तो सिर्फ नेगेटिव होगा ना. मैंने आपको 10 दिए, ठीक है, और मुझे 2 मिले, ठीक है, तो मेरा तो लॉस हो गया ना.
मेरे को तो लॉस हो गया 8 रुपीज़ का। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हो अंदर नेगेटिव पोलैरिटी मेंटेन हुई। उसका था दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप चलता है जो कि 3Na+ आउटसाइड भेजता है फॉर 2K+ इनसाइड। अगेन पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा जा रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम आ रहा है क्योंकि 2 ही पॉजिटिव आयंस बाहर आ रहे हैं और 3Na+ बाहर जा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आपके पास अंदर की तरफ नेगेटिव पोलैरिटी मेंटेन होती है और बाहर की तरफ पॉजिटिव। और थर्ड पॉइंट तो यही था कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सोप्लाज्म में और उनका नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरॉन की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे अपना कोई भी वो इम्पल्स नहीं कंडक्ट करती है, उसे रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। वो -70 मिलीवोल्ट होती है। कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट होती है। और वो यहाँ पे दे रखा है कैसे मेंटेन होती है। एक तो Na+K+ का एक्टिव पंप होता है। एक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होता है। ATP का यूटिलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट नहीं हो रहा है, ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। क्योंकि ECF में तो ऑलरेडी Na+ आयंस का ओशन है ना, अब उसी में तुम और Na+ आयंस भेज रहे हो तो ATP का तो यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी तो यूटिलाइज होगी। तुम्हें बाहर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है तो ATP का यूटिलाइजेशन तो होगा। और प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म जो हमारी बॉडी का ऑलरेडी मैकेनिज्म है, देयर इज़ नो इफ एंड बट है। अब है इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स। कैसे हमारी बॉडी इम्पल्स को कंडक्ट करती है। जब भी कोई स्टिमुलस अवेलेबल होता है, मान लो मैंने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा या फिर आपने किसी हॉट टम्बलर को टच करा तो ये क्या हुआ? इम्पल्स मिला बॉडी को। तो कभी भी इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स होता है तो Na+ लीकी चैनल ओपन कर जाते हैं। अब Na+ लीकी चैनल ओपन करेंगे तो Na+ अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा। पॉजिटिव चार्ज एक्सोप्लाज्म के अंदर बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू तो कम होगी, तो -70 मिलीवोल्ट से वो -55 मिलीवोल्ट पर जाएगा। अब और भी कम होता जाएगा, आप ध्यान देखना। जब ये -55 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाता है उसी को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड? आप थ्रेशोल्ड फिजिक्स में पढ़ते होंगे। इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। और आपने लेट कर लिया कि वो साइट A है या 1 है, कोई भी साइट है। तो जितनी भी मिनिमम वैल्यू आपको पोटेंशियल की चाहिए होगी अगर फर्दर इम्पल्स क्रिएट करना है उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जो कि ह्यूमंस के केस में -55 मिलीवोल्ट है। तो आपके पास Na+ लीकी चैनल्स ओपन करे और उसकी वजह से आपके पास Na+ अंदर आया। और वो जब जाएगा साइट A पर तब ओपन होंगे Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल। जब Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल है तो फिर से अंदर Na+ आएगा, आएगा, आएगा। अब -70 से -55 हुआ, मतलब कम नेगेटिव हुआ। अब पॉजिटिव चला जाएगा, इतना कम नेगेटिव हो गया कि पॉजिटिव में चला गया तो +30 मिलीवोल्ट हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप देखिए ज़रा, यहाँ वाला इस मेम्ब्रेन को देखिए ज़रा, इधर देखो -70 से -55 और ये +30 मिलीवोल्ट हो गया। इसी को अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स। थ्रेशोल्ड वैल्यू -55 मिलीवोल्ट थी, एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स +30 मिलीवोल्ट है। इसका मतलब है कि अंदर पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। अंदर क्या होता था? नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। अब अंदर पॉजिटिव हो गया है, बाहर नेगेटिव हो गया है। बट ये स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमीबिलिटी टू Na+ आयंस शॉर्ट लिव्ड होती है और अब K+ वोल्टेज गेटेड चैनल भी ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और K+ वोल्टेज गेटेड चैनल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो अब पॉजिटिव चार्ज फिर से कम होना शुरू होगा और K+ आयंस बाहर जाएंगे और फिर से नेगेटिव पोटेंशियल में तो वापस आओगे। तो +30 से -70 मिलीवोल्ट जब पहुंच जाएगा उस स्टेट को रीपोलराइजेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। और ये K+ लीक वोल्टेज गेटेड चैनल बहुत टाइम लेते हैं क्लोज होने में और इसी थोड़ा सा डिले ऑफ टाइम की वजह से -70 मिलीवोल्ट से पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है और -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाती है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अभी तो हमें फिर से -30 मिलीवोल्ट पे जाना है अपनी वापस
डीप पोलराइज स्टेट पे पहुंचना है। तो आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल और K+ वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे और फिर से आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेन हो जाएगी, जो आपके पास बेसिकली -30 मिलीवोल्ट होती है इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। तो ये बेसिकली ग्राफ है जो कि शो कर रहा है कि पहले वोल्टेज आपके पास जब -70 मिलीवोल्ट था तब आपके पास Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करें, मतलब Na+ अंदर आया तो +30 पे पहुंचा, फिर K+ वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करा तो -70 पे पहले पहुंचा होगा, बट उसका टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर से उसे ऐसे -90 पे पहुंचना पड़ा, और फिर जब वापस ऊपर जाएगा कि जब वो बंद हो जाएंगे Na+ और K+ वोल्टेज गेटेड चैनल फिर से क्लोज हो जाएंगे तो फिर से -70 पे ओपन कर जाएगा। ये तो हो गया आपके पास इनिशिएशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। बट कंडक्ट अलोंग द डिफरेंट साइड्स कैसे होगा, एक साइड के बाद एक साइड, एक साइड के बाद एक साइड, उसकी कंडक्शन भी अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक सेकेंड, आई वुड लाइक टू करेक्ट वन थिंग। मैंने यहाँ पे -30 मिलीवोल्ट लिख दिया, तो बेसिकली जो RMP होती है वो -70 मिलीवोल्ट होती है। तो ये जो RMP है वो -70 मिलीवोल्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है। अंदर क्या आया था, थोड़े से टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया था और बाहर नेगेटिव। तो अब क्या होगा, करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और बाहर करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पूछता है NCERT की इनसाइड द एक्सोप्लाज्म द करंट फ्लो इज फ्रॉम साइड A टू साइड B एंड आउटसाइड साइड B टू साइड A। और इसको फ्लो इसलिए करना पड़ता है ताकि हम सर्किट को कंप्लीट कर सकें। तो जैसे ही हुआ तो Na+ आयन साइड B पे गया, Na+ लीकेज चैनल उधर ओपन करें, वहाँ पे भी Na+ अंदर आया तो -55 से +30 पे पहुँचा, पॉजिटिव हुआ। उसके बाद फर्दर वो साइड C पे जाएगा तो करंट फ्लो फ्रॉम साइड A टू साइड B इनसाइड एंड साइड B टू साइड A आउटसाइड। कंडक्शन अक्रॉस माइलिनेटेड न्यूरॉन इज कॉल्ड द सॉल्टेटरी या फास्टर या फिर जंपिंग। अब इसे क्यों कहते हैं, देखिए अगर मैं माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करूँ, रुकिए ये, अब इसमें क्या है, बार बार बीच में माइलिन शीट तंग कर रही है। जिसमें माइलिन शीट नहीं होती इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट जिसमें माइलिन शीट तंग कर रही है तो उसमें जो इम्पल्स ट्रैवल करेगी उसको जंप करना पड़ेगा बार बार। यहाँ पे माइलिन शीट आ गई, जंप करना पड़ेगा तो इस पॉइंट पे पहुँचा, फिर नोड्स ऑफ रिनवीर की वैल्यू पे इस पे पहुँचा, फिर इस पे पहुँचा, फिर इस पे पहुँचा, बार बार जंप करना पड़ेगा इधर 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 इधर। माइलिन शीट वाले पॉइंट को अवॉइड करते हुए उसे ऐसे बार बार जंप करना पड़ेगा। इस टाइप की कंडक्शन को हम सॉल्टेटरी कहते हैं, ये जंपिंग कंडक्शन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद व्हाट इज अ जंक्शन? जंक्शन फॉर्म्ड बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ साइनैप्स and a junction formed between a neuron and a muscle is called a neuromuscular junction। तो कभी कभार टेस्ट में वो क्वेश्चंस भी डालेगा, अ जंक्शन फॉर्म बिटवीन अ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गलत बात है, या फिर उल्टा भी दे सकता है, अ जंक्शन फॉर्म बिटवीन वन न्यूरॉन एंड वन मसल इज कॉल्ड सिनैप्स, वो भी गलत है। सिर्फ 2 न्यूरॉन्स होंगे तब सिनैप्स बनेगा, और अगर एक न्यूरॉन और एक मसल होगा तब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा। 2 तरीके से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू वन न्यूरॉन टू वन न्यूरॉन, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। केमिकल कम्युनिकेशन यूजिंग न्यूरोट्रांसमिटर्स, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ आयंस का यूज़ होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि एक स्पेस होती है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, इधर ज़्यादा स्पेस होती है इधर कम स्पेस होती है। गैप जंक्शंस इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये स्लोअर कंडक्शन है और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस की बहुत फास्ट कंडक्शन होती है। ये मोस्ट कॉमन है हमारी ह्यूमन बॉडी में, और ये ह्यूमन बॉडी में रेयर होता है। इलेक्ट्रिकल यूनिडायरेक्शनल होता है और ये बाई डायरेक्शनल होता है। What is the transmission across a chemical synapse looks like? Impulse travel till the axon terminal, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम, एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे। तो इम्पल्स वहाँ तक ट्रैवल करते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन करते हैं, और कैल्शियम चैनल्स जब ओपन करेंगे तो आपके पास फ्यूजन हो जाएगी सिनैप्टिक वेसिकल्स की, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं विद द प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। और जब वो फ्यूजन हो जाएगी तो फ्यूज़ हुआ और सारा कंटेंट जो भी उसके अंदर प्रेजेंट था न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ हो गया। और ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है कि सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स ढूंढेंगे और उनके साथ बाइंड करेंगे।
The receptors for the neurotransmitter are found on the postsynaptic membrane और ये फर्दर इम्पल्स का ऐसे ही कंडक्शन होगा। एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी देख लेते हैं। ये डेंड्राइट है और ये बहुत हाँ यानी मैंने बताया ना इनिशियल ग्रैन्यूल होते हैं जो कि न्यूरॉन बॉडी सेल बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये न्यूक्लियस है जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये शॉन सेल दिखाया है और वो माइलिन शीट बनाता है। ये एक्सॉन है और ये नोड ऑफ रैनवियर है। ये एक्सॉन का टर्मिनल है और ये साइनेप्टिक नोब है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। एक्सोनल मेम्ब्रेन मोस्टली इम्परमेबल। एनसीईआरटी एक और पॉइंट लिखते हैं जो कि मिस हो गया था, वो लिखते हैं इट इज द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नियरली इम्परमेबल टू Na+ बट हाईली परमेबल टू K+। इस पॉइंट से हमें बस यही इन्फर करना है ECF जो है वो Na+ आयंस का ओशन है, इसलिए तो है क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है वो नियरली इम्परमेबल टू Na+ आयंस है, तो वो Na+ आयंस को क्रॉस होने नहीं देती। एज ए रिजल्ट बाहर Na+ की आयंस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। एंड परमेबल टू K+, क्यों? क्योंकि जो एक्सोप्लाज्म है उसमें K+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। बस इससे हमें ये इन्फर करना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना एक्टिव फॉर्म के साथ, वो अलग कहानी है। हम इसकी बात कर रहे थे, नोड ऑफ रैनवियर हो गया जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है, एक्सॉन का टर्मिनल हो गया और ये जो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है वो सिनेप्टिक नोब हो गया। अब बात करते हैं फेवरेट टॉपिक की जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका स्ट्रक्चर वॉलनट लाइक होता है, क्रेनियम उसको प्रोटेक्ट करता है एंड उसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं। क्रेनियल मेनिंजेस आर नोन एज द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द ब्रेन। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूरा मैटर सबसे आउटर वाला, मिडिल लेयर अरेकिनॉइड एंड थर्ड जो सबसे इनर होती है और ब्रेन टिश्यू के उसको एकदम कवर करती है, उसे पिया मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर के यहाँ पे और एरेकिनॉइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस होती है। एरेकिनॉइड मिडिल लेयर होती है, वेब्ड होती है, थिन कनेक्टिव टिश्यू लाइक लेयर होती है। पिया मैटर इज द इनरमोस्ट, इज ऑल्सो थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द ब्रेन एंड हाईली वास्कुलर। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की कमी नहीं होगी। और जो एरेकिनॉइड है और पिया मैटर है उधर सब एरेकिनॉइड स्पेस होती है जिसके अंदर बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें CSF होता है। फोर ब्रेन में हमें सेरिब्रम पढ़ना है, ऑल्फैक्टरी लूब्स पढ़ने हैं, हिप्पोकैम्पस पढ़ना है, अमिगडाला स्ट्रक्चर पढ़ना है और डायएन्सेफेलॉन पढ़ना है। अगर आपको याद हो फ्रॉग में भी हम ये सभी पढ़ते हैं, बट उस फ्रॉग का जो डायएन्सेफेलॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है। डायएन्सेफेलॉन के 3 पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। तो एक कॉर्पस कैलोसम होता है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स जो कनेक्ट करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। ये स्ट्रक्चर जो इसके नीचे है वो हाइपोथैलेमस है, जो मैंने ये दिखा रखा है वाइट कलर का गोल का वो थैलेमस है, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है न्यूरल और मोटर सिग्नलिंग के लिए। ये सेरिबेलम है जो कि मिनी सेरिब्रम भी होता है और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है और नीचे कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था ताकि इसी में फंक्शंस थोड़े बहुत आ जाए। तो जो आपको येलो कलर से लेबल करा है वो है आपके पास कॉर्पस कैलोसम। इसको एनसीईआरटी लिखते हैं इट इज़ अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इसी को हम कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और इसी को कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो क्या होगा? कॉर्पस कैलोसम। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी मेक द फोर ब्रेन और यह है मिड ब्रेन। फिर एनसीईआरटी डिस्क्राइब करती है मिड ब्रेन की लोकेशन विच इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस स्लैश हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। दिखी तो रहा है ये मिड ब्रेन है, रेड कलर से जो दिखा रखा है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम मिड ब्रेन कहेंगे जो कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स जो कि एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है, ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हो गए, उसमें दूसरा पार्ट है सेरिबेलम और थर्ड पार्ट है मेडुला। सेरिबेलम इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस एंड द पोस्चर और जो ब्रेन स्टेम होता है वो बना होता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। मतलब कि एनसीईआरटी अगर लिखे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, वो पहले ओल्ड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी में ऐसे लिखती थी, बट अब वो बताती है कि मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन में एक्सेप्ट सेरिबेलम वो ब्रेन स्टेम नहीं बनाएगा, बाकी जो पॉन्स और मेडुला वो तो बनाएंगे। और मेडुला इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़, अभी सारे वो पढ़ेंगे।
और एक और सेरेब्रल एक्विडक्ट होती है, मिड ब्रेन से पास करती है। फोरब्रेन इज मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द, फोरब्रेन जो होता है वो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है ब्रेन का, और उसमें भी सेरिब्रम जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट है फोरब्रेन का पार्ट। ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बेसिकली थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए कि जो कॉर्पस कैलोसम होगा वो लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करेगा, और एक लेफ्ट होगी जो कि लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करेगा। आउटर मैटर जो आउटर जो होता है रीजन वो ग्रेश अपीयर करता है, जो इनर होता है वो वाइटिश करता है। एक्सॉन्स जो होती हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं, माइलिनेटेड होती हैं इनसाइड, मतलब कि अंदर की तरफ वाइट मैटर क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं जो कि आपके पास वाइट कलर देती है, ओपेक वाइट अपीयरेंस देती हैं, झाड़ी लिखती हैं, और बाहर की तरफ न्यूरॉन सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड होती हैं जिसकी वजह से ग्रेइश कलर आता है। 4 लोब्स होते हैं जिसमें आपके पास एक होता है फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ऑसिपिटल जो होगा विजुअल इनपुट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टेम्पोरल ऑडिटरी इनपुट्स के लिए, और जो पेराइटल होगा वो सेंसरी इनपुट्स के लिए, और जो फ्रंटल होगा वो मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए।